तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो उस तैयारी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए आई एम हेयर माई सेल्फ विजय, एंड टुडे वी आर गोना स्टडी the population interaction and the particular population interaction which have negative, at least one negative condition. Okay, and we have studied about the positive conditions in the previous video. So based upon at least this one negative, we have एक हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रीडेशन, इसमें दूसरा आता है parasitism. Third one we have in this is amensalism, and last but not the least it is competition. What are the conditions of all of these four? The conditions for all of these four are predation. One population is benefited, second population is negatively affected. One population in parasitism is benefited and second is negatively affected. Population A, population B, same condition here. Amensalism, one population does not have any effector but the second population is negatively affected. And in this condition, we have both of the species getting negative feedback or negatively affected. So all of these you can see have at least one negative condition present. So शुरू करेंगे प्रीडेशन के साथ। सो प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज व्हेन वन स्पीशीज इज फीडिंग अपॉन द सेकंड स्पीशीज, एंड दिस इंक्लूड्स व्हाट? द कार्निवोर्स. Given example in the previous video of lion and deer. This condition is the predation condition. फायदे क्या क्या हैं? What are now you can see any population which is feeding on to the other population. ठीक है, whether the population that is being fed upon वो किसी और population को भी खा सकता है. So the predator for some other population can be prey for some higher population. Example we have is when frog eats an insect and frog is eaten by a snake and snake is eaten by an eagle. So all of these are predator on their own niche habitat. अपने अपने habitat, अपने अपने niche में वो क्या हैं? predator हैं. But जैसे ही वो अपने niche से बाहर निकलते हैं, they are prey for some other predator. Clear with this? So lion and deer में एग्जांपल हम दे सकते हैं, फ्रॉग और स्नेक का एग्जांपल, फ्रॉग एंड ईगल का एग्जांपल, और बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स, अगर प्रीडेटर की पॉपुलेशन कम हो जाती है, प्रीडेटर की पॉपुलेशन अगर लेस चली जाती है, तो डियर पॉपुलेशन या यू कैन से हर्बीवोर पॉपुलेशन विल राइज अप and this will disbalance the complete ecosystem. So यहां से जो डियर है या जो भी हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म है, that the population of that organism is always checked, always controlled by the predator. Clear with this? And this maintains an equilibrium in this condition. That is maintaining equilibrium. Equilibrium is maintained. Clear with this? Second condition we have, we can use this predator and prey relationship as what? As biological control. इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? Biological control की तरह. Suppose any population that is एलियन, एक पॉपुलेशन एक जगह के हैबिटेट से निकलकर, एक इकोसिस्टम से निकलकर दूसरे इकोसिस्टम में चली जाती है, और द प्राइमरी इकोसिस्टम इन विच इट वाज सर्वाइविंग, जहां पर वो सर्वाइव कर रही थी, हो सकता है दूसरे इकोसिस्टम में जाने के बाद में वो अपने रिसोर्सेज को और ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सके, और जो वहां पर नेटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको नुकसान करना शुरू कर दे. इसमें एग्जांपल है आपके पास
कैक्टस का, किधर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैक्टस क्या है, एलियन स्पीशीज हो गई थी और इसने आसपास के वेजिटेशन को क्या धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। इट वॉज ब्लास्टिंग एंड जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको फूड मिलना कम हो गया, तो वहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा क्या हुई, अप एंड डाउन हो गई। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने कैक्टोब्लास्टिस एक हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म है और जो नेटिव है यानी जो फीड करता है सिर्फ और सिर्फ कैक्टस पे, वो कैक्टस को बड़ी आराम से खा सकता है। तरीका उनका क्या है, दैट इज देयर अडॉप्टेशन। बट ये कैक्टस को खाकर खत्म कर सकता है, तो ये कंट्रोल में लेकर आने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, दीज आर द इकोलॉजिकल लाइव एग्जांपल्स। सेकेंड कंडीशन वी हैव इज रेड लोकस्टस। रेड लोकस्ट इज एन इंसेक्ट और इसका जो कंडीशन थी वो कहां पर थी, दैट वाज इन मॉरिशस। मॉरिशस में ये बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इंडिया से मैना को इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर व्हाट, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ दिस रेड लोकस्ट। ठीक है, क्योंकि ये एलियन पॉपुलेशन थी बट मॉरिशस के एनवायरमेंट में ये काफी ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे थे। ठीक है जी, ये आती है बात प्रिडेशन की, और प्रिडेशन जरूरी भी है और फायदेमंद भी है, बट यहां पे एक स्पीशीज को नेगेटिवली अफेक्ट होता है। सेकेंड कंडीशन भी है पैरासिटिज्म, और पैरासिटिज्म जो है वो सबसे पहले तो होगा एक्टो, यानी टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म में एक्टो एंड एंडो। दूसरी आती है इसमें होलो और हेमी। तीसरा आता है इसमें टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी एंड परमानेंट। अब टेम्परेरी एंड परमानेंट के बाद में भी और क्या रहेगा, ब्रॉड पैरासिटिज्म। ठीक है, हम इनको इन चार से पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक। क्लियर विद दिस, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। एक्टोपैरासाइट कौन से होते हैं, द पैरासाइट विच आर लिविंग अप ऑन द बॉडी, जो बॉडी के ऊपर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लाइस प्रेजेंट इन द हेयर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, that is ectoparasite. They does not enter inside the cell, do not interfere with the physiology, do not interfere with physiology, remember this thing. वो फिजियोलॉजी के साथ छेड़खानी नहीं करते, they just take up something from outer surface of the body. ठीक है, एंडोपैरासाइट that enters inside the body, example इसमें मैं अगर प्लाज्मोडियम का दूं, that will not be a wrong condition. एक्टो में आपको पता चल गया। इसके बाद ट्राइकोडर्मा, फंगस विच इज प्रेजेंट ऑन द स्किन, दैट इज ऑल्सो अ पैरासाइट, जो एक्टो बाहर बॉडी पे प्रेजेंट होती है। होलो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द होस्ट फॉर इट्स न्यूट्रिशन एंड विदाउट होस्ट इट कैन नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर सकती। हेमी इज जिसको अपनी लाइफ साइकिल के कुछ पार्ट के लिए पैरासाइट होना पड़ता है। इसमें भी मैं एग्जांपल अगर हेमी का मैं भी प्लाज्मोडियम का दे दूं, देन इट विल बी ए नॉट अ रॉन्ग कंडीशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड होना पड़ता है। टेम्परेरी फॉर सम टाइम, परमानेंट जब से लेके तब तक, यानी जब तक इसकी एक लाइफ साइकिल खत्म नहीं होगी ये परमानेंट ही रहेगा, और सारा का सारा अपना फूड सोर्स जो है वो ऑर्गेनिज्म से ही लेता रहेगा। इसके बाद ये परमानेंट है इस तरीके से भी कि ये इसके पास एडॉप्टेशन, यानी इसके पास खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम, या हो सकता है इसके डिफेंस मैकेनिज्म, या हो सकता है इसका ऑफेंस मैकेनिज्म, सारे के सारे बहुत हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। इसलिए ये टोटली डिपेंड करता है और इसकी लाइफ साइकिल कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ब्रॉड पैरासिटिज्म में ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई, कोयल इज द कुकू बर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, कोयल। और एक एग्जांपल इसका ये है कि ये हमेशा अपने अंडे
किसी ऐसे पक्षी के घोंसले में रखती है अंडे जहां उनको एग ले करेंगे, तो इवोल्यूशन में, थ्रू आउट इवोल्यूशन, द एग साइज, द एग शेप हैज बीन adopted to become equal to the host nest. ठीक है, जो भी होस्ट पक्षी है उसके अंडों की तरह दिखना शुरू हो गए। अब वो जो मां है जिसके घोंसले में उसने अंडे दिए हैं, वो उसको इंक्यूबेट करेगी, उनको पालेगी, उनको वैसे ही खाना खिलाएगी। एंड एज सुन एज द कोयल बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे डू, दे जस्ट किल द babies, the kill the you can say the new hatchlings of that host bird. ठीक है, that you have seen in I think 3 Idiots movie. एग्जाम्पल बिल्कुल सबसे पहले मिस्टर वायरस ने दिया था। सो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक कंडीशन, पैथोजेनिक होते हैं यही जो एग्जाम्पल मैं तब से आपको दे रहा हूं, इसमें एंटामीबा हिस्टोलिका आ सकता है, ठीक है, इसमें एंटामीबा कोलाई आ सकता है। और ये कंडीशन जो है जब पैथोजन होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म और नेगेटिव नुकसान भी होता है। अब यहां पे नॉन पैथोजेनिक कंडीशन क्या है, इसमें रूट पैरासाइट और स्टेम पैरासाइट भी आते हैं दो। तो रूट पैरासाइट में एग्जांपल है कस्कूटा का, और रूट पैरासाइट में एग्जांपल है निमेटोड्स का। स्टेम में कस्कूटा, रूट में निमेटोड। इसके बाद वायरसेस, तो ये नॉन पैथोजेनिक कंडीशन भी हो सकती है। इसमें एग्जांपल हम लेंगे अगर इकोलाई का, तो इकोलाई जो है बहुत सारी जगहों पर ऐसे प्रेजेंट होता है कि वो उसको कोई फायदा मिले या ना मिले, बट वो होस्ट को नुकसान नहीं करती। क्लियर विद दिस? इसके अलावा पैथोजन के ऊपर पैथोजन कंडीशन भी प्रेजेंट हो सकती है, एंड दैट इज नोन एज हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट की कंडीशन क्या है, बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो किसी आदमी के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर पैथोजन हो सकता है, उसके ऊपर भी पैथोजन कौन होता है, बैक्टीरियोफाज वायरस। क्लियर विद दिस? देन वी हैव द एमेंसिलिज्म, और एमेंसिलिज्म में एग्जांपल हम देंगे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम का, जो क्या रिलीज करता है, पेनिसिलिन। ठीक है जी, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन किसको खत्म कर सकता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पेनिसिलिन, व्हाट इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो अपने आसपास किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देती। किसने ढूंढा था? ये ढूंढा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन से सन में? 1945 में। और इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस दवाई ने बहुत सारी जानें बचाई थी, क्योंकि मौत का ज्यादा कारण क्या था, वो वुंडेड सोल्जर्स जिनके घाव खराब हो जाते थे, सड़ जाते थे। ठीक है। और इसके बाद है कंपटीशन। तो कंपटीशन वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, वो एक स्पीशीज के अंदर भी हो सकता है, और दो अलग अलग यानी अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है। प्लस ये कंपटीशन जो है दो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम पॉपुलेशन भी हो सकता है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। और जब दो स्पीशीज के बीच में होगा, इट इज इंटर स्पेसिफिक। क्लियर? तो इसमें से क्वेश्चन कुछ इस तरह से अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इज एनी हैबिटेट इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट, यू कैन से नियर बाय कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नियर बाय कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, Which type of competition will be there? So वहां पर होगा एलिफेंट के स्पीशीज के अंदर ही कंपटीशन, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। कंपटीशन जरूरी किस लिए? इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को चलाने के लिए, और इन सब चीजों के लिए भी जरूरी है। प्लस उसके बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था नेगेटिव, और इसके अलावा ये पॉजिटिव। इसमें एक प्रिंसिपल आता है, अगर हम पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल आता है, वी हैव प्रिंसिपल गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या लॉ। गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट दिस गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टेल्स that whenever two species are present nearby, the species which is less adopted is eliminated from that area. तो इसका एग्जांपल जो है वो किस पे किया गया था? पैरामीशियम पे।
पैरामीशियम की दो स्पीशीज को एक प्लेट पे ग्रो करवाया गया था. वन स्पीशीज डोमिनेटेड एंड सेकंड स्पीशीज ऑटोमेटिकली गॉट एलिमिनेटेड. सो थैंक यू सो मच एवरीवन स्टूडेंट्स. फटाफट से जो भी आपका मन करे वो करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ अगली क्लास के लिए. थैंक यू सो मच.